Hi friends, welcome to my channel and it's a very lovely day. It's Friday, Fab Friday. In the morning I did not shoot anything. Though I had opportunities, I was just sitting in Nana Nani Park and these aunties की group की एक lady मेरे साथ बात करने लगी और काफ़ी बात मुझे पता था they would ask me all such questions. उसमें से दो लेडीज़ नहीं आई थी. उसने कहा कि एक बाहर गई है और एक सो रही है. सो ये जो हमारी औरतों में जो क्यूरियोसिटी है ना, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, वो उनके पेट में पचता नहीं है. उनको क्वेश्चंस पूछने हैं और उनको जानना है. सी आई एम सिटिंग इन माई वेरी लेड बैक करके कपड़े. देर इज नथिंग ऑन माई फेस एंड आई एम जस्ट कैजुअल टुडे. I might buy this Plumka lipstick called Berry Tail and a hair color called Fur, which I may just buy I might just buy maybe tomorrow or day after. So ladies का जो thought process होता है ना, they speak out of curiosity. Now when I'll give you an example, when I'm in my small garden, now it has become like a small family. You see the same faces, you smile, and the watchman has become very pleasant. He has stopped his chichora pana to quite certain time, and things have become more pleasant now. It's like a small, everybody knows everybody now. That same faces, everybody says hi, hello, and it's such a pleasant feeling, it's like a small community. So this is Gujju auntie who comes in. She comes at around 8:45, right? कल एक भी मस्कीटो नहीं था, आज मस्कीटो ही मस्कीटो. Okay, it's a dusk. So what I'm trying to say is that how you present yourself, how you are, because I'm such a regular. It's not that I'm every day there. Okay, दो दिन का गैप रहता है ना. कभी मैं नाना नानी पार्क जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ, कभी स्मॉल गार्डन में जाती हूँ बिकॉज दैट्स जस्ट ऑपोजिट माई होम. मैं पॉन्ड पार्क नहीं गई. आई वेंट फॉर अ चर्च विजिट, देन आई वेंट टू नाना नानी पार्क एंड आई हैड माई मसाला डोसा एट JM Idlis टुडे. Did I like it? Yes, but वो plate है ना बड़ा congested है, तो you cannot eat properly the masala dosa in that. You can eat your idli and vada in that, but you cannot eat your masala dosa. मसाला डोसा के लिए थोड़ा सा फैला हुआ प्लेट चाहिए. I like their सांबर, I like their chutney, and खाना कभी भी बैठ के खाना चाहिए. मैं कभी भी बाहर खाती हूँ ना तो खड़े रह के खाना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस. मैंने सिर्फ अभी एक हफ्ते से, और कभी कभी मैं इडली खाती हूँ तो आई स्टैंड एंड आई ईट, विच आई डोंट एंजॉय इट, बट द फ्रेशनेस ऑफ द इडली एंड चटनी इज सो गुड दैट आई डोंट माइंड कॉम्प्रोमाइजिंग. So let me see, next time if I'm sitting, I'll sit on some steps and eat it. वो सुपरमार्केट के स्टेप के पास बैठ के मैं आराम से खा लूंगी, या घर से प्लेट लेके जाऊंगी, उसमें बाटी लेके जाऊंगी, मैं बोलूंगी इसमें डाल के दे दे. वो है सीरियसली. I will not stand and eat like this. I'll always find a place where I can sit and eat my meal. चलो मैंने वो खा लिया था. मुझे वो एक्सपीरियंस देखना था कि मैं बैठ के खाऊं तो कैसे लगता है, खड़े रह के खाऊं तो कैसे लगता है. आई हैव कट डाउन माई डाइट सो मच दैट मैं सिर्फ सुबह का खाना खाती हूँ. आई जस्ट हैव माई ब्रेकफास्ट, जस्ट दिस प्लेन इडलीज, एंड अगर मुझे भूख लगे तो चना कुरमुरा, शींग एंड चूड़ा, तो वो फ्लेवर लाने के लिए. Chana kurmura, sheng, chuda, chana kurmura and sheng. Just this plain diet has so much of vitamins and minerals and nutrients. I don't know, people might be looking down. It is little dry, but अगर तुम लोग सैलेड उसका भेल बना के खाना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड विद इट. समर सीजन है, खा लो. कभी कभी मुझे वो वेजिटेबल्स भी खाने का मन नहीं करता है, सीरियसली नहीं करता है, सो आई डोंट ईट इट. It's dry food. If you're pairing it with salad, it's always good. It's always better. But sometimes you just don't feel like having raw vegetables. You just don't feel like. When you don't feel like having, जबरदस्ती मत करो अपने body को.
मूवमेंट रखो अपने बॉडी में. सी माई फेस इज लुकिंग फ्रेश इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट. टुडे आई गिव डैरल सर दैट वाइट, बड़े बड़े मोटे मोटे वाइट फ्लावर्स बने थे, तो मैंने उनको दे, आई गेव इट टू हिम. आई सेड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच for being such a wonderful person, for being such a father figure, for being such a amazing man. Like ऐसे आदमी, ऐसे भगवान कम ही बनाते लगते हैं अपने कारखाने में, क्योंकि जो भी आजकल दिखते हैं वो सब डोरमैट टाइप ही है, स्पाइनलेस विंग्स. So much of integrity in him, so much of dignity as a man. उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, ऐसी चीज़ें समझाई जिसके लिए मैं आंसर्स ढूंढती रहती थी, और उन्होंने मुझे ऐसे विस्तार में बताई, चीज़ें समझाई कि मैं, आई वाज लाइक, it was regarding my own relationship because he knows both of us. He explained to me very well. He explained to me the situation, and he told me one thing, that Shanti, don't be proud, don't be arrogant, don't take things like, okay, I won the battle and all that. Don't think like that. Be humble, be accepting. If you're not for, if you don't want any, if you're not into it, you're not. If you don't want it, it's okay, but don't go around insulting the other person, because you don't know what the other person has gone through, or why was that person behaving like this. So उसने मुझे ये भी कहा कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि it's not that I'm siding the other person. Whatever that other person has done is not right, absolutely not right, but it's completely wrong. But then उन्होंने जब मुझे explain किया, तो I understood things कि we need men like these in our lives who give us a balanced opinion. I hope you understand. You know, fathers, brothers, uncles. You know, we need that father figure in our life. I'm really telling you this. Friends, male friends, cousin, brothers, anything male who is giving you a balanced opinion. यही बात अगर मैं किसी औरत से बात करती तो कैसे बातें करती. एंड यू वोंट बिलीव, मुझे एक एक चीज़ें, आई डिडंट नो दैट मेरे लाइफ में लोग इतना इंटरेस्ट रखते हैं. ये मत समझना कि ऑपोजिट पार्टी के फैमिली के तरफ से कोई स्पाई नहीं कर रहा है मुझ पर, या मेरे, आई शुड नॉट बी सेइंग, कुछ कॉमन लोग हैं, कुछ आंटियां, एक ही आंटी आई थी very subtly कुछ चीजें मुझसे पूछने के लिए, but she was acting very subtle. That was last year. So I was practically shocked out of my wits. मुझे लगा कुछ चीजें समझ लोगों को नहीं पता है. नहीं, सबको सब कुछ पता होता है. One cannot live in la land if you are living in India, especially. Yeah, everybody knows everything and everybody is into everybody's business. So yeah, can you imagine that? I'm a prime example. मेरे रिश्ते का ब्रेकअप हुआ है, and there are people totally keeping a total watch on me, मेरे मूवमेंट के ऊपर, कि मेरा क्या रिश्ता है, वो कितना रिश्ता है, जबकि रिश्ता कुछ भी नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, 0 पे आ चुका है, फिर भी पीपल आर क्यूरियस. इट्स माई गुड लक, मैं बोल सकती हूँ कि थिंग्स हैड नॉट गॉन आउट ऑफ हैंड, वरना पता नहीं क्या हो जाता. सो यस, ये मत सोचो कि शांति हैप्पी गो लकी
तो मैंने अपने आप को हैप्पी बोला कि रखा है वैसे, एंड आई एम नॉट रियली बॉदर्ड। वरना यहाँ के लोग इतने भैंचोद है ना कि आई कैंट टेल यू कि क्या कौन सा टॉपिक लेके कहाँ पे अटैच करके क्या क्या बातें करते हैं। सैड टू से फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन दिस, हमारे ब्रेकअप में। यस, completely. That's the sad part of it. His side of his family is involved in this. जब मैं वो सोचती हूँ ना तो मैं क्या बोलूँ। Sir even told me that he's not man enough to stand for anything. He's saying no matter whoever was involved, he is not man enough to stand by his conviction. That is his problem. You did what you had to do. That was his problem. He never behaved like a man, which is a fact. Which is a fact. So carried away with so much of things in his life. Imagine that. और मैं उनके चेहरे जब देखती हूँ ना तो मैं उनके चेहरे देख के ऐसे मुझे कैसे फील होता होगा उसके फैमिली मेंबर्स के चेहरे देख के कि मैंने क्या बिगाड़ा था। हाँ सीरियसली। जो भी होता है अभी क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ। It's not as simple as it seems to be. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप जब लोग रिलेशनशिप का ढोल बजाते हैं ना, मैंने बोला व्हेन फैमिलीज आर इन्वॉल्व तो यू कैन इमेजिन हाउ इट इज, हाउ इट इज। एंड वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, तो आई होप यू हमारे कॉमन लोगों को जानते हैं, कॉमन लोगों को। इट्स वेरी पेनफुल टू इवन थिंक अबाउट इट कि कैसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों के लाइफ के अंदर। I was listening to Rajiv Dixit. I don't know how many people know Rajiv Dixit. Rajiv Dixit is one of those very कट्टर आयुर्वेदा पे उन्होंने काफ़ी स्टडी किया। इस IIT कानपुर मीन्स इज अ टेक्निकल साइंस पर्सन, साइंटिफिक पर्सन आई शुड से। तो आयुर्वेदा के जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो जब पढ़ाई करते ना उसके अंदर घुस जाते। तो and he used to tour India, he used to be that स्वदेशी इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट। खाने पीने पे अभी तुम ये दो टाइप के लोग होते हैं, एक है कट्टर वो आयुर्वेदिक के लोग होते हैं और एक है होम्योपैथ्स और नेचुरोपैथ्स। अगर तुम नेचुरोपैथ्स देखते हो वो डेयरी प्रोडक्ट्स को 100% एलिमिनेट करेंगे तुम्हारे खाने से, वाइल एज आयुर्वेदिक में उन लोग बोलेंगे देसी घी, जो गाय का दूध देसी घी का होता है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे। हर चीज में घी को नंबर 1, छाछ को इम्पोर्टेंस देंगे, मक्खन को इम्पोर्टेंस देंगे, मक्खन से ज्यादा घी को इम्पोर्टेंस देंगे। तो और नॉनवेज को एब्सोल्यूट 0 पे लेके आएंगे वो। नेचुरोपैथ से फूड एंड उनका है फूड इज मेडिसिन, सो दे विल ओनली टेल यू टू कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द रॉ फॉर्म or any form but vegetables. So when अभी हमारी बॉडी टाइप क्या किस तरह से बनी हुई है, ओके
and which condition we are living in, which region we are living in. See, naturopaths are correct in their own way, homeopaths are right in their own way, Ayurvedic is right in their own way. मतलब लेकिन अगर तुम हर किसी को फॉलो करोगे तो तुम पागल हो जाओगे. ओके, आई यूज टू हैव आयुर्वेदिक मेडिसिन, और आयुर्वेदिक मेडिसिन सब बहुत हीटी है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो 3 महीने से ज्यादा कोई भी मेडिसिन खानी नहीं चाहिए, उसमें भी ब्रेक्स रखने चाहिए. और आयुर्वेदिक के मेडिसिन बहुत ही हीटी है, ऊपर से बहुत सारी चीजें उन लोग नाना ही बोलते हैं, जैसे टमाटर में एनीथिंग एसिडेड, ब्रिंजॉल, ये वो एलिमिनेट करेंगे. वो दही दही बहुत गर्म रहता है, दही की वो पोटेंसी होती है ना, वो गर्म इसका होता है. उसका छाछ जब बनता है फेट के, जब हम खाते तो ठंडी बन जाती है. और जो पैक्ड दही होती है ना, वो तो मीठी दही होती है, और जो हम बनाते हैं घर पे वो खट्टी दही होती है. मैंने नंदिनी दूध से काफी अच्छा दही बनाया था. आई यूज टू मेक दही एट होम. तुम घर पे अब बनाते हो ना, जैसे नागौरी मिल्क सेंटर से तुम दही लेके आते हो, क्योंकि वो बनाते हैं, और तुम आके घर में वो दूध की, खुद के दूध की बनाते हो, मतलब दूध की पैकेट लाके आके अपना खुद का दही बनाते हो. दैट इज द रियल प्रोबायोटिक, नॉट द पैक्ड वंस. पैक्ड वंस भी होते हैं, लेकिन दे यूज प्रिजर्वेटिव्स इन इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. You know why I am saying all these things randomly is because जब मुझे सारी चीज़ें समझ में आई, जब मुझे चीज़ें लिटरली समझ में आई कि मेरी लाइफ में किस तरह की ट्रेजिक चीज़ें हो रही थी करके. So many people are involved in it, बाप रे. So many people are monitoring me and my movements. मुझे तो हंसी आ रही है. मतलब दम उन्होंने ये देख लिया कि इस रिश्ते को उनको तोड़ मरोड़ना है, जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसे मेरी लाइफ में हो चुका है. मैंने बोला एक मेरी बंदी थी. डेफिनेटली. मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? Why should I, just because you're not man enough to take your decisions, why should I suffer your consequences? और उन्होंने मुझे, डाडल सर ने एक ही चीज कही, his complications are not your complications. You're going to be there, but you're going to be very clear about. You have to sort out your own issues and stand by your own things. काश हमें इस तरह के फादरली फिगर्स मिल जाते हैं लाइफ में. और मुझे उन्होंने इतना भी कहा कि इफ एनी टाइम यू फील दैट यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस और सपोर्ट, you can count on me and see to that. मतलब उनका ये था कि nobody should be bothering you and nobody should be like pestering you or harassing you. मैंने बोला नहीं सर ऐसा, if so yes definitely. I can just imagine. I'm not surprised after the breakup. Not because only of my breakup, because of many of the other issues and reasons or whatever it is. Somebody is going through hell.
I'm just saying to men, stand stand by your decisions. If it is an yes, then if it is an yes, then it should be an yes, and give you stand by it. If it is a no, then stand by it. Don't be like one foot in the door. No, I want this and I'm not ready for it, and make a mess of it. And even if I want to tell women that कि it's my own personal experience, पहले मैं जिद्दी होती थी. I was very I even told Darren sir, I was full of bitterness and hatred. I was so angry, I was so bitter, I was so like, imagine somebody rejecting you and hurting you and whatever it is. I had become a bitter person, but I've just calmed down now. I've just calmed down, and I'm just taking things like, I'm just letting it go, which was not easy for me. I said, I am a kind of a person who used to send such hate messages, whether he reads it or not. I was like this, demon possessed woman. I said, I will teach him a lesson. I will take that revenge from him. It was not easy for me. It was not easy for me. वो शांत हो जाना, वो calm down हो जाना. It took me a lot of time, ऐसा नहीं कि you will be dating other people, फिर भी तुम रिवेंज लोगे, फिर भी तुम बॉदर करोगे, फिर भी तुम इरिटेट करोगे अपने एक्स को. ये लिख के ले लो मुझसे. ये मैंने भी किया है ये. But then I stopped it. I just said, no, enough is enough. Enough is just enough. Enough is enough. As I said, I cannot एकदम जैसे बोलते ना, मेमोरी वो से निकलता नहीं है. इसके 2-3 कारण है, बिकॉज कोई ना कोई मुझे दिख ही जाता है रिलेटेड टू हिम, उसके खुद के फैमिली मेंबर्स जिन्होंने इतना सारा कांड किया हुआ. उनके चेहरे पे भी देखती हूँ मैं, तो मुझे कैसा लगता होगा. एंड देन आई हैव टू बी पोलाइट एंड जस्ट से हाय हेलो ऑल्सो. वो भी मुझे और ज्यादा इरिटेट करता है. जाने दो. और तुझे नसीब का है तो है, नहीं तो नहीं है. क्या कर सकते हैं इंसान, क्या मतलब अभी आई स्टॉप, क्या बोलते हैं ना,